ये विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को कल हमने सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, केंद्रीय अंतर फॉर्मूले के बारे में बात की थी और उनकी कुछ डेफिनेशंस बात की थी। आज मैं वापस उसी को बता रहा हूँ। डेल्टा इक्वल्स टू, वी नो दैट ई रेज टू हाफ माइनस ई रेज टू माइनस हाफ, वेर ई इक्वल्स टू हम जानते हैं ई इक्वल्स टू 1 plus delta. E is operator and delta is also operator. This is central operator, this is mu Sankarak, average operator, 1 upon 2 e raised to half plus e raised to minus half. ये दो हमने कल फॉर्मूले पढ़े थे, म्यू एंड डेल्टा। आज हम प्रूव करना चाहते हैं। ये चार पार्ट हमने लिखे ए बी सी डी। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, सिंपल प्रॉपर्टीज है E प्लस आई डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस E माइनस आई म्यू के बराबर। सो LHS से नाउ टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, तो LHS पार्ट ले हम लोग E प्लस I into delta. So now we substitute the value of delta E plus I and put the value of e raised to half minus e raised to minus half. This is the definition of delta from this equation. Therefore first part से e raised to half मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर बनेगा e raised to half plus e raised to minus half and e raised to half and minus e raised to minus half. ये ब्रैकेट ऐसी चीज लिखा और इसमें से हमने e raised to half बाहर निकाला और e plus 1 को हमने e plus iota चेंज कर दिया। अब हम जानते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, सो e plus half plus e raised to minus half equals to twice of mu। ये अपन इस सेकेंड इक्वेशन से जानते हैं और इसी को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो देयरफॉर ट्वाइस mu, इस ब्रैकेट को पुट किया e mu और e raised to half and minus e raised to minus half, और दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mu e हाफ इधर ट्रांसफर कर दीजिए e minus 1, दिस इज योर RHS पार्ट, ट्वाइस mu e minus 1, दिस इज योर RHS पार्ट। तो हमने देखा कि एक सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज की, सब्स्टिट्यूट किया डेफिनेशन, समझ में आ गया, डेल्टा की वैल्यू हमने पुट किया और फर्स्ट टर्म में से इसको कन्वर्ट किया, इसको इस फॉर्म में बनाया e raised to half plus e raised to minus half. So mu equals to 1 upon 2 e raised to half plus e raised to minus half and substitute the value of this bracket in terms of mu. So twice mu e raised to half minus e raised to minus half. Now taking inside e raised to half, so e minus 1, this is your RHS part, first part. Now second part, B delta raised to n yn is equals to delta raised to n yx minus n. So now we want to prove from RHS side, delta raised to n yx minus n by 2. We are given in this form delta raised to n y minus this. Now delta raised to n हम जानते हैं e raised to n yx equals to अपन जानते हैं yx plus n. When n is converted to n by 2, you get your result this one. So delta raised to n e raised to minus n by 2 and yx. Now this is equals to delta e raised to minus 1 upon 2 into whole power n yx. हमने कल एक प्रूव किया था कि को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें। हम जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू e raised to half minus e raised to minus half. Now we want to change into this function, so therefore e raised to minus half का बाहर निकला तो हमारे पास क्या बनेगा e minus 1. This is equals to forward delta e raised to minus half. This delta equals to forward delta e raised to minus half. ये अपन जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू, वी नो दैट e minus 1 फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. डेल्टा इक्वल्स टू e minus 1 हम जानते हैं, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e minus 1 इज डेल्टा e raised to minus half. Now delta e raised to minus half is taken as delta raised to n yx. This is your LHS part, yx and yn. This is your LHS part. So हमने देखा सिंपल सा, हमने क्या किया
कि ये जो वाई एक्स माइनस एन बाई टू है इसको कन्वर्ट किया ई में, समझ आ गया? इसको कन्वर्ट किया हमने ई में, और इसको कन्वर्ट करने के बाद होल ब्रैकेट में ले गए और इसकी प्रॉपर्टी हमने डेल्टा में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको आरएचएस पार्ट जो है ना, एलएचएस पार्ट आपका डेल्टा में है, स्मॉल डेल्टा में, सो वी वांट टू चेंज ई और ई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. So therefore this result is proved from second result. Now third result. Now third result देखिए I minus n और राइट हैंड पार्ट में आपके पास y0 है. So C पार्ट to prove LHS पार्ट से y of minus n. So this is converted, इसको e में ट्रांसफर करना है, e of minus n y0, e of minus n y0. Therefore हम जानते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है कि बैकवर्ड डेल्टा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने बैकवर्ड डेल्टा को प्रूव किया था, तो हम जानते हैं e एफ एक्स या e of yx इक्वल्स टू, अपन क्या जानते हैं, yx plus h. Now it is converted into backward delta. So backward की definition हमारी थी backward of fx, backward of fx equals to fx minus f of x minus h. So this is equal to yx plus h माइनस की फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, yx plus h माइनस yx और प्लस yx. ये देखो हमने इसको चेंज किया, केवल प्लस और माइनस की फॉर्म में. नाउ इट कन्वर्ट इनटू डेल्टा, नाउ इट कन्वर्ट इनटू डेल्टा, बैकवर्ड डेल्टा. सो हम जानते हैं ये जो टर्म है, दिस इज 1 माइनस डेल्टा होल रेज टू माइनस एन बाई 0. इसको आप चाहें तो इसको डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे होगा, ये हमारे वाई एक्स प्लस एच और वाई एक्स, सो इसको हम कर रहे हैं बैकवर्ड डेल्टा में. सो इसको डेल्टा वाई एक्स प्लस एच प्लस वाई एक्स, दिस इज योर प्लस की फॉर्म में. और यू वांट टू चेंज इन माइनस की फॉर्म में, तो आप इसको अगेन चेंज कर दीजिए 1 माइनस डेल्टा वाई एक्स की फॉर्म में. इसी का यूज करें. नाउ एक्सपेंड बाय टेलर सीरीज. टेलर सीरीज या सिंपल बाइनोमियल से भी पूछ सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम. तो हमारे पास क्या होगा, 1 फर्स्ट में प्लस NC1 डेल्टा या माइनस प्लस आ जाएगा दोनों प्लस NC2 डेल्टा स्क्वायर प्लस NC3 डेल्टा क्यूब एंड सो और होल ब्रैकेट के बाहर y of 0. Now it will convert into plus minus की फॉर्म में समीशन से. So summation k varying 0 to n minus 1 raised to n minus 1 raised to n NC1, so NCk, this is NCk delta raised to k और y of 0. This is your RHS part. प्लस माइनस की फॉर्म से दिस इज योर RHS पार्ट. नाउ दिस इज द प्रूफ ऑफ C पार्ट. देन फोर्थ E पार्ट विल बी कन्वर्ट एज डेल्टा स्क्वायर. सो LHS डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर y of 0 equals to e raised to half minus e raised to minus half whole square y of 0. So a minus b का whole square से खोले तो therefore e minus 1 plus 2 plus or minus a minus b plus this. So this implies we want to change in this form. So e of y0 minus twice of y0 plus e minus 1 by 0. So this is equals to y1 minus 2y0 plus y of minus 1. This is your RHS part. So हमने देखा कि सिंपल सी प्रॉपर्टीज का यूज करें e एंड म्यू का, डेल्टा एंड म्यू का, और यू गेट योर रिजल्ट्स इन दिस फॉर्म्स. एक अनदर हमारा प्रूफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बुक में, उनका प्रूफ हम करते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराता हूँ मैं. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस
sin hyperbolic u by 2 where hd equals to u. Second, mu equals to twice cos hyperbolic u by 2. And third C part, mu equals to e raised to minus half plus 1 upon 2 delta. And fourth is forward delta, backward delta is forward, backward into forward equals to forward minus backward equals to delta square. Or fifth part, delta equals to 1 upon delta square plus delta root 1 plus delta square by 4. We want to prove all these terms using these formulas और फर्स्ट चैप्टर्स के फॉर्मूले जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े उन्हीं का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और देखिए फर्स्ट रिजल्ट LHS पार्ट डेल्टा इक्वल्स टू वी नो दैट e raised to half minus e raised to minus half, e raised to half and e raised to minus half। एंड फर्स्ट चैप्टर में हमने जो रिजल्ट्स पढ़े थे, जो पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे, उन्हीं रिजल्ट से हम लोग इसको यूज करेंगे और वो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ e equals to e raised to hd। we know that e equals to e raised to hd equals to 1 plus delta, ये हम जानते हैं। so by using this result, so therefore e will be converted into hd, so delta equals to e raised to hd by 2 minus e raised to minus hd by 2. Again we know that sin hyperbolic x equals to e raised to x minus e raised to minus x upon 2। ये रिजल्ट हम स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अपन जानते हैं। सो देयरफॉर इट विल कन्वर्ट इनटू e raised to hd, तो hd equals to u, hd by 2 equals to u। so therefore this formula will be written as e raised to x या e raised to u minus e raised to minus u, e raised to u minus e raised to minus u। और हम इस फॉर्मूले से देखें e raised to x minus e raised to x equals to twice of sin hyperbolic, so therefore this is equals to twice of sin hyperbolic u by 2, u by 2 कर दीजिए और यहाँ u by 2, so therefore u by 2, this is your आपका RHS part। Similarly second question, mu equals to LHS से mu equals to half of e raised to half minus या प्लस e raised to minus half, ये अपन जानते हैं परिभाषा से। अगेन इसको कन्वर्ट करें e में तो ये हो जाएगा twice of mu equals to e raised to hd by 2 plus e raised to minus hd by 2। अगेन हम जानते हैं cos hyperbolic x equals to e raised to x plus e raised to minus x upon 2, ये अपन जानते हैं। so this is equals to, this will convert as twice of cos hyperbolic hd u by 2 where u equals to hd, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। so twice of mu equal to twice cancel, so this is your RHS part, this is your cos hyperbolic u by 2, u equal to mu equals to cos hyperbolic u by 2 और डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस sin hyperbolic u by 2। ये these two first two के जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव किया अपन ने। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट देखें म्यू इक्वल्स टू थर्ड रिजल्ट, या तो आपको अगर इजी नहीं लगता है तो आप इसको राइट हैंड पार्ट में से शुरू कर दीजिए जो आसान लगे। तो राइट हैंड पार्ट से अगर मैं शुरू करूँ इसको, हमें वी आर गिविंग e raised to minus half plus 1 upon 2 into delta, then using the definition e raised to minus half plus 1 upon 2, definition e raised to half plus minus e raised to minus half, ये definition है डेल्टा की। Now we want to convert into the mu, so simple, therefore taking LCM 2, therefore twice e raised to minus half plus e raised to half minus e raised to minus half, so this implies यहाँ से माइनस हो जाएगा, this is equal to e raised to half plus e raised to minus half upon 2, this is equals to mu, ये आपका LHS part।
This is simple definition of mu, half e raised to half plus e raised to minus half. This is your third result. Now fourth one में देखिए, fourth we are doing, हम जानते हैं forward into backward equal to backward into forward equals to forward minus backward. ये तीन रिजल्ट हम फर्स्ट चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं, और चाहे तो आप इस यहाँ पे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसको हमें प्रूव किसके इक्वल करना है, डेल्टा स्क्वायर. दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर. हम इसको डेल्टा स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो आप देखिए, जैसे फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड, वी नो दैट फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एंड बैकवर्ड ऑपरेटर बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. ये अपन जानते हैं दोनों की डेफिनेशन. और ये फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं. नाउ आरएचएस पार्ट से डेल्टा स्क्वायर, सो ई रेज़ टू हाफ minus e raised to minus half whole square. So therefore e then convert into delta square yx equals to therefore yx e minus 2 plus e minus 1 yx. So this is equals to yx plus h minus twice yx plus yx minus h. Now simple सा इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, yx plus h minus yx, then minus of करके yx minus yx minus h. So first term will be forward delta, second term is backward delta yx. So this is your LHS part. This one equal to this. और ये फर्स्ट थ्री टर्म्स आपस में बराबर होती है. हमने पहले चैप्टर में इसको प्रूव कर चुके हैं. आपको केवल इतना सा किया, हमने डेल्टा स्क्वायर किया. डेल्टा स्क्वायर का मीन्स डेल्टा की डेफिनेशन, इसका होल स्क्वायर के अंदर हमने इसको yx से मल्टीप्लाई किया यूजिंग e डेफिनेशन. e ऑफ yx इज कन्वर्ट एज yx प्लस h माइनस 2y ऑफ yx और yx माइनस h. नाउ फर्स्ट टू टर्म से yx प्लस h माइनस yx, और इसमें से माइनस कॉमन लेके yx माइनस h. So this is your forward delta, this is your backward delta, so this is your LHS part. So this fourth one is result is proved. Now fifth one में हमने क्या किया, RHS part से शुरू करें. Put the value of delta 1/2 e raised to half minus e raised to minus half whole square, then plus e raised to half minus e raised to minus half, and root of 1 plus root of 1 plus e raised to half minus e raised to minus half whole square upon 4. Now solving this, 1/2 e minus twice plus e inverse whole square से, और plus e half minus e raised to minus half root उसका upon 2 मैंने बाहर निकाला, root 4 plus e minus twice और plus e inverse. So this implies e raised to half minus e raised to minus half अपॉन 2, और इसको हमने किया रूट में e रेज़ टू हाफ प्लस e रेज़ टू माइनस हाफ होल स्क्वायर. सो सॉल्विंग दिस वी हमें किस में कन्वर्ट करना है, फॉरवर्ड डेल्टा में. फॉरवर्ड डेल्टा मीन्स हम लोग इसको एफएक्स में इसको चेंज कर देंगे yx की फॉर्म से. सो दिस इम्प्लाइज 1/2 यहाँ से भी 1/2 यहाँ से, 1/2 e रेज़ टू हाफ माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ होल स्क्वायर. फर्स्ट ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया, सेकंड ब्रैकेट से प्लस 1/2 e रेज़ टू हाफ माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ, और ब्रैकेट में e रेज़ टू हाफ प्लस e रेज़ टू माइनस हाफ. हमने इस अंडर रूट से इसको बाहर निकाला, और ये फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज लिखी, e रेज़ टू हाफ एंड माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ होल स्क्वायर. ये बुक का आंसर्ड क्वेश्चन है जो कि मैं सॉल्व करके आपको प्रूव कर रहा हूँ. हमें प्रूव करना है डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा ऑफ रूट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4. नाउ टेकिंग आउटसाइड 1/2 e रेज़ टू हाफ माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ, बाहर इनसाइड बचेगा e रेज़ टू हाफ माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ. फर्स्ट ब्रैकेट से ये टर्म का होल स्क्वायर इसलिए बचेगा, ये बाहर आ गया, प्लस e रेज़ टू हाफ और प्लस e रेज़ टू माइनस हाफ.
देखिए ये सेकंड टर्म और ये फोर्थ टर्म कैंसिल, e रेज़ टू हाफ और e रेज़ टू हाफ मींस ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू हाफ अपॉन ट्वाइस इनटू e रेज़ टू हाफ माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ। सो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, e रेज़ टू हाफ को इनसाइड ट्रांसफर करें, e रेज़ टू हाफ को ट्रांसफर किया तो e माइनस 1 और ये दिस इज योर डेल्टा। हम जानते हैं e इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा, सो डेल्टा इक्वल्स टू e माइनस 1, e माइनस 1। तो आप देखिए सीधा सा सिंपल सा है कि अगर हमारे पास ये टर्म गिवन है तो इस टर्म में हमने केवल डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ की है, और डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ करके हमने केवल इसको सिंप्लीफिकेशन किया और वी गेट योर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। सो दीज आर द सिंपल रिजल्ट्स which is given by central difference operator, central difference equations. So आप इनका यूज़ करें और इनको सॉल्व करें, इनकी सिंपल परिभाषा को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कीजिए और इनको वीडियो को लगातार देखते हुए और इनको सॉल्व करिए, इनका सिंपल यूज़ करें, और अगले वीडियो में हम इसके कुछ फॉर्मूलेज पढ़ाएंगे सेंट्रल डिफरेंस के। थैंक यू।